اور محکمہ صحت فیصلاباد کے پاس 70 سال سے زائد عمر کے بزرگوں کو لگائی جانے والی سنگل ڈوز ویکسین ختم۔ بزرگ افراد کو کورونا وبا سے محفوظ رہنے کے لیے ڈبل ڈوز ویکسین لگوانا پڑ رہی ہے۔ رپورٹ کریں گے عزادار حسین۔ محکمہ صحت کی جانب سے 70 سال سے زائد عمر کے افراد کو سنگل ڈوز ویکسین لگائی جا رہی تھی، مگر اب محکمہ صحت کے پاس 70 سال سے زائد عمر کے بزرگوں کو لگائی جانے والی سنگل ڈوز ویکسین ختم ہو گئی ہے، اور ایسے میں بزرگ افراد کو کورونا وبا سے محفوظ رہنے کے لیے ڈبل ڈوز ویکسین لگوانا پڑ رہی ہے، جس پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میڈیکل سروسز ڈاکٹر اطول مونم کا کہنا ہے کہ سنگل ڈوز ختم ہونے سے متعلق حکومت کو آگاہ کیا ہوا ہے۔ سنگل ڈوز کے حوالے سے بات کریں تو کینسائنو ویکسین تھی جو کہ 7000 خوراکیں ہمیں فیصل آباد کو بھجوائی گئی تھیں، وہ اب شارٹ ہو گئی ہیں اور اب ہم دوبارہ سے جو سائنو فارم ہے اس پر آ گئے۔ تو پہلے جو 70 سال سے زائد لوگ تھے ان کو سنگل ڈوز لگتی تھی، لیکن اب ہم ان کو اگین سائنو فارم جو دو خوراکیں ہوتی ہیں، یعنی ایک ابھی لگے گی تو ایک 21 دن کے بعد لگے گی۔ امید ہے جلد ویکسین فراہم ہو جائے گی، ایسے میں کورونا وائرس کی سنگل ڈوز سے شہری پریشانی سے محفوظ رہ سکیں گے اور انہیں دوسری ڈوز لگوانے کے لیے چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ کینسائنو کے حوالے سے گورنمنٹ کو ڈیمانڈ بھجوا دی ہے، جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا اگلے کچھ دنوں تک جو ہے وہ کینسائنو ویکسین آ جائے گی۔ جیسی وہ ویکسین آئے گی تو ہم دوبارہ سے 70 سال سے زائد عمر والوں کو سنگل ڈوز خوراک لگانا شروع کر دیں گے، جس سے ان کو بار بار آنا ویکسینیشن سینٹر پہ نہیں پڑے گا۔ کورونا کے وار سے ڈویژن میں 2 افراد جان سے گئے، مزید 210 نئے کیس رپورٹ ہوئے، اس میں 138 فیصل آباد، چنیوٹ 24، چھنگ 26، ٹوبہ میں 12 افراد مثبت رپورٹ ہوئے۔ کرانا ہماری ذمہ داری ہے، تنخواہیں کس سے لیں؟ FWMC مالی بحران سے دوچار ہے، 3500 ملازمین تنخواہوں کے منتظر ہیں۔ فیصل آباد میں لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن سراپا احتجاج ہیں۔ رپورٹ کریں گے عبدالرحمان۔ ہر تہوار سے قبل FWMC میں تنخواہوں کا بحران پیدا ہونے لگا۔ اس وقت 3500 ملازمین تنخواہوں کے منتظر ہیں، مگر تنخواہ ادا نہیں ہو پا رہی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کاشف آوان کا کہنا ہے کہ ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے، فنڈز آنے کے بعد معاملہ فوری حل ہو جائے گا۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے PFC شیئر اور لون کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے، تو ابھی PFC شیئر اور لون دونوں ان پروسیس ہیں لاہور کے اندر سیکریٹریٹ کے اندر، تو جیسے ہی وہاں سے وہ پروسیس ختم ہوتا ہے تو ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں تو فوری طور پہ تنخواہیں ریلیز کر دی جائیں گی۔ دوسری جانب لوکل گورنمنٹ ورکرز کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے تنخواہوں میں اضافے کی خبر تو سنائی جا چکی ہے، مگر عملی طور پر کوئی اقدامات نہ ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ابھی روزے چل رہے ہیں، عید سر پہ ہے، مہنگائی بازار جائیں چیز لینے تو پتہ چلتا ہے کہ مہنگائی کتنی ہے۔ 1% تنخواہ میں ابھی تک اضافہ نہیں کیا۔ ہم بار بار میڈیا کی وسالت سے پرامن احتجاج بھی کر چکے ہیں، لیکن آخری بار ہم وارننگ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ اگر 25% کا اضافہ نہ کیا تو عید کے بعد دم مست کلندر ہوگا انشاءاللہ۔ کمپنی ملازمین کی جانب سے تنخواہوں کا معاملہ فوری حل کروانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ فیصل آباد شہر میں سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں نے ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے تیزی لانے کا مطالبہ کر دیا۔ شہریوں کا موقف ہے کہ محکمانہ کارروائیوں کو تیز کیا جائے تو کام میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ رپورٹ کریں گے عبدالرحمان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے فیصل آباد کے لیے 13 بلین کے ترقیاتی پیکج کا اعلان ہوا، مگر محکموں کی جانب سے ابھی تک پرپوزل ہی نہیں بنائی جا سکیں۔ شہریوں نے جلد فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شہریوں کا موقف ہے کہ حکومت کو اپنے کاموں میں تیزی لانی چاہیے۔ جنگ روڈ ہے وہ بالکل ٹوٹا ہوا ہے، فنڈنگ ان کو ہو گئی ہے، اب ان کو چاہیے گورنمنٹ کو کہ وہ جلدی سے جلدی ان کی تعمیر کریں تاکہ جو گاڑیاں جا رہی ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے، ان کے ٹائروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ MP میاں طاہر جمیل کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صرف اعلانات کی حد تک محدود ہیں، شہر میں کہیں پر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا، حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، کوئی محکمہ بھی ٹھیک طریقے سے اپنا کام سر انجام نہیں دے رہا۔ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور اس شہر نے اربوں روپے ٹیکس جو ہے وہ منتھلی اکٹھے کر کے گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالتا ہے، تو ہمیں اس طرح کی جو سہولیات ہیں وہ بھی مہیا ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر کی طرف سے جو صرف میں نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ صرف اور صرف اعلان ہے اور ان کے جھوٹے دعوے ہیں، یہ بالکل عمران خان کے دعووں کی طرح یہ بھی جھوٹا دعویٰ ثابت ہوا ہے کہ فیصل آباد کو 13 بلین کا جو پروجیکٹس ہیں وہ مل گئے ہیں۔ شہریوں نے سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کی فوری تعمیر کا مطالبہ کر دیا۔ اراکین پارلیمان اور شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے فنڈز بالفور جاری کیے جائیں تاکہ جو ان کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکے اور سڑکیں بہترین طریقے سے مرمت کی جا سکیں۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔
चिन्योट के रजुआ सादात में खवातीन के नाम पर मुतअद्दिद सिम्स निकलवाए जाने का इंकशाफ। निजी मोबाइल कंपनी का मुलाजिम खवातीन से सेहत कार्ड, राशन कार्ड के नाम पर अंगूठे लगवाकर दर्जनों सिम्स निकलवा चुके हैं। धोखाधड़ी से निकलवाए गए सिम्स तकरीबकारी में भी इस्तेमाल होने का खदशा है। रिपोर्ट करेंगे वकार घुमन। रजुआ सादात की मुतासरा खवातीनों हजरात ने DPO ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज में इंकशाफ किया गया कि मेहदी हसन नामी निजी मोबाइल कंपनी का मुलाजिम आए रोज डिवाइस पर खवातीन के अंगूठे लगवाकर सिमें निकलवाता रहा है। 3-3, 4-4 सिमें हैं, ठीक है ना। मेरी बेटी के नाम कोई सिम नहीं थी। मेरी बेटी के नाम का नया न्यू कार्ड बना, वो पड़ती है फर्स्ट ईयर में, उसके नाम पे भी 2 सिमें आ गई, जबकि हमने निकलवाई भी नहीं। जब सबने डाटा चेक किया है ना, तो सबके नाम की 5-5, 3-3, 4-4 सिमें निकल आई हैं। ना लेके ते अंगूठे साडे लवाए गए नो ते सिम्मा कटाइयां गई साडे नां ते। पहले आते रहे कुछ लोग भी वो 3000 रुपया देना है तो वो अपने ना अंगूठे लगवाओ। हमने लगवा दिए अंगूठे, गरीब बंदा है तो वो नहीं आए। फिर सेहत कार्ड वाले आए हैं। सेहत कार्ड वालों ने कहा भी तुम्हारे सेहत कार्ड बने हुए हैं, अपने अंगूठे लगवाओ, तुम्हारे ओके कर दें। हमने अंगूठे लगा दिए, नहीं जी तुम्हारे ओके नहीं है, ये किसी और के हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने शुबा जाहिर किया कि निकलवाई गई सिमें मुबैना तौर पर तहरीबकारी में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। पुलिस को चाहिए कि मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करके जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। कैमरामैन अलीदेव चौहान के साथ वकार गुमन, चिन्योट। अहमदपुर सियाल में एहसास कफालत सेंटर को बंद हुए 7 रोज गुजर गए। इंतजामिया की जानिब से सेंटर को फाल करवाने के लिए कोई इकदाम न किए जा सके। मुस्तहिक खवातीन सेंटर के बाहर गर्मी और धूप में रकूम की हसूल की उम्मीद लगारे रुलने लगी। रिपोर्ट करेंगे अम्मार यासिर। अहमदपुर सियाल में असास कफालत सेंटर को बंद हुए 7 रोज गुजर गए, मगर इंतजामिया की जानिब से सेंटर को फाल करवाने के लिए कोई इकदाम न किए जा सके। मुस्तहिक खवातीन सेंटर के बाहर गर्मी और धूप में रकूम के हसूल की उम्मीद लगाए रुलने लगी। खवातीन का कहना है कि आए रोज आती हैं मगर सेंटर बंद मिलता है। ईद करीब है मगर हुकूमत की जानिब से मिलने वाली इमदाद का हसूल नामुमकिन हो गया है। गर्मी छोटे छोटे बच्चे असी घर साट के आने हैं, ठीक है ना, ते मेहरबानी करो सानू जेड़ा है पैसे चाहिए हैं। गरीब बंदे हैं, बच्चे जैसा कपड़ा थिगड़ा या कोई चीज ला लवा, मेहरबानी करो। मुस्तहिक खवातीन का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से हालात पहले ही खराब हो चुके हैं। ऊपर से हुकूमती इमदाद ना मिलने की वजह से घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। 10 दिन हो गए बैठे थे, कोई नहीं पैसे मिलते पा इतने बह के तवागवे निक्का जी बच्ची रुलाते वागवे। खवातीन का कहना है कि DC जंग नोटिस लेकर सेंटर फाल करवाएं और रकूम की अदायगी को यकीनी बनवाएं ताकि परेशानियों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ अम्मार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। और जंग इंतजामिया की अनोखी मंतक। शदीद गर्मी के दौरान झैल घर रमजान बाजार में पंखे बंद करके हैवी लाइट्स जला दी गई। इंतजामिया का कहना है कि 2 दिन से बिजली खराब है, जनरेटर पर मुतबादिल बिजली फराहम की जा रही है। रिपोर्ट करेंगे मुबशर हसन नकवी। झैल घर रमजान बाजार में दी जाने वाली बिजली खराब होने से बाजार में आए खरीदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंखे और एयर कूलर बंद हैं। जनरेटर पर हैवी लाइट्स दिन के औकात में भी जला दी गईं, जिसने गर्मी में मजीद इजाफा कर दिया। बिजली बंद होने से वॉक थ्रू गेट भी बंद रहा। बाजार की सिक्योरिटी दांव पर लग गई। जनरेटर के जरिए मुतबादिल बिजली फराहम की गई और निजाम बुरी तरह मुतासिर रहा। पंखे तो चल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही चल रहे हैं, बाकी जो कोई लेने वाला है उसके ऊपर कोई पंखा शंखा नहीं चल रहा है। इसे कोई इंतजाम आते नहीं, किस चीज़ का इंतजाम आता है, क्या चीज़ मिल रही है। लाइन में खड़े रहो, इधर से खड़े रहो, इधर ये लाइन लगी हुई है 1-1 किलो चीनी के पीछे, सारी आवाम को भिखारी बनाया हुआ है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल से रमजान बाजारों के इंतजामात को बेहतर करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, छंग। टोबा टेक्सिंग के रमजान बाजार से अमला गायब। चीनी की बरवक्त फराहमी शुरू ना हो सकी। अवाम 1 किलो चीनी के लिए लाइनों में खार होने लगे। ओपन मार्केट से चीनी खरीदना हल करार दे दिया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। टेक्सिंग के रमजान बाजार में अमला न पहुंचने की वजह से चीनी की फराहमी का अमल ताखीर के साथ शुरू हुआ, जिसकी वजह से लोगों का पारा हाई हो गया। अवाम 1 किलो चीनी के हसूल के लिए सुबह 7 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं। शहरियों का कहना है कि इससे तो बेहतर है कि ओपन मार्केट से चीनी हासिल कर लें। सारा दिन लाइनों में लगने के बाद 1 किलो चीनी मुहैया होती है, जबकि अमले का जब दिल चाहता है आकर काम शुरू कर देता है। सुबह 8 बजे से हैं, कोई परेशानी हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई अरेंजमेंट बैठने का। ये लोग खड़े थक गए हैं बेचारे, अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। सुबह 7 बजे के आए हुए हैं, अब तक काम नहीं शुरू हुआ। अमला हाथों में हाथ रख कर बैठा हुआ है।
लिहाजा बहुत नेगलिजेंसी है, हुकूमत की नेगलिजेंसी है। इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे, जिस पर शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर रोजाना की बुनियाद पर वक्त पर काम शुरू करने का मुतालबा कर दिया, ताकि लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। रमज़ान बाजार में अमला अपनी मर्जी के साथ ज़रूर आता है, लेकिन लोग जो है वो सुबह 7 बजे कर आकर 1 किलो चीनी हासिल करने के हवाले से लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, ओवरटेक से। फैसलाबाद डिवीजन भर में खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने रेवेन्यू खिदमत अवामी कचहरी लगाई। महकमा माल समेत दीगर महकमों के हवाले से शिकायत और मसाइल सुने। सालीन ने अमले की बदउनवानियों की निशानदेही की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खालिद, फजल रबी और रेवेन्यू अफसरान भी मौका पर मौजूद थे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से शफीक अंजुम ने जाती अराजी के रिकॉर्ड की टेम्परिंग की शिकायत दर्ज करवाई। चिनौट में DC नुमान मसूद ने रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लगाई। सालीन के मसाइल सुने और हल करने के लिए अहकाम जारी किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कमल व दीगर स्टाफ भी मौजूद थे। इस दौरान शहरियों की तरफ से दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द के इजरा, इंतकालात के इंदराज, रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल के इजरा समेत महकमा माल से मुतल्लिका मसाइल और शिकायत पेश की गई। तहसील कचहरी गोजरा में रेवेन्यू अवामी खिदमत का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अंबरी ने इंतजामात का जायजा लिया। शहरियों के रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। लालिया में 8वीं माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम रेवेन्यू अमला सालीन की दाद रसी के लिए मौजूद रहा। AC लालिया फजल अब्बास का कहना था कि सालीन की मौका पर दाद रसी की जा रही है। बमाना में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। मुतल्लिका अफसरान ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकाम जारी किए। AC इकरा मुस्तफा कहती हैं, शहरियों के फौरी मसाइल के हल के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। सुमंदरी में भी रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद। तहसीलदार, कानून गो, पटवारी अमला और अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला मौजूद था। AC फैसल सुल्तान का कहना था कि अवाम के मसाइल मौके पर हल करना अव्वलीन तरजीह है। फैसलाबाद के टैक्स दहिंदगान के लिए अच्छी खबर। FBR ने मार्च में क्लेम किए जाने वाले 1 अरब 47 करोड़ रुपए के रिफंड्स जारी कर दिए। टैक्स दहिंदगान की जानिब से 1 अरब 70 करोड़ रुपए के रिफंड्स क्लेम किए गए थे। FBR ने मार्च के 1 अरब 47 करोड़ रुपए के रिफंड्स जारी कर दिए हैं। मार्च में टैक्स गुजारों ने 1 अरब 70 करोड़ रुपए के रिफंड्स क्लेम किए थे, जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 23 करोड़ रुपए के रिफंड्स आर्जी तौर पर मुस्तरद हुए, जबकि मुस्तरद शुदा रिफंड्स पर असर-ए-नौ तहकीकात होंगी। इब्तदाई वर्किंग के बाद बोर्ड की जानिब से हतमी मंजूरी मिलने पर ही रिफंड्स मुतालिका टैक्स गुजारों को जारी हो सकेंगे। FBR हुकाम के मुताबिक रिफंड्स इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की मद में क्लेम किए गए थे। रिफंड्स की बरवक्त अदायगी से माशी सरगर्मियों में बेहतरी आती है। फेस्को ने बिजली से महरूम इलाकों में बिजली का तरसीली निज़ाम बचाने के लिए पोल और दीगर मटीरियल की खरीदारी पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करने का फैसला कर लिया। बिजली से महरूम इलाकों के मकीनों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। नए सामान की खरीदारी के लिए टेंडर्स भी जारी कर दिया गया। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि वजारत तवानाई और फेस्को चीफ अरशद मुनीर वड़ाइच की हिदायत पर देहात को रोशन करने का सिलसिला जारी है। 2 करोड़ 20 लाख रुपए के नए टेंडर्स जारी किए गए हैं ताकि नया सामान खरीदा जा सके। यूरोपीय पार्लियामेंट की जानिब से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस मुअत्तल करने की सिफारिश से एक्सपोर्टर्स परेशान, बरामदात को बड़ा झटका लगेगा। यूरोपीय पार्लियामेंट की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई। GSP+ स्टेटस भी दाव पर लग गया। एक्सपोर्टर्स परेशान हैं कि बड़ी तादाद में बरामदात यूरोप जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल के हेड जफर सरवर ने भी तशवीश का इजहार किया। और चिन्योट में ज़िला इंतजामिया की मुबैना गफलत, बाईपास के बजाय अंदरून शहर में पर्ची टैक्स लिया जाने लगा। मोहल्ला समनाबाद के रिहायशियों ने DC ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज किया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अफसरान की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस बाईपास की बजाय अंदरून शहर में पर्ची टैक्स लिया जा रहा है, जिसके खिलाफ मोहल्ला समनाबाद के रिहायशियों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अंदरून शहर में चुंगी वाक़या होने से इलाके की खवातीन को परेशानी का सामना है, जिन्हें टैक्स पर तैनात अनासिर की जानिब से हरासा किया जाता है, जबकि आए रोज रिक्शा ड्राइवरों पर तशद्दुद और गालम गलौज के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जी जो पर्ची के पॉइंट हैं ये पहले इधर बाईपास पे ही होते थे, लेकिन कुछ अर्सा पहले साल हो गया तो इधर आके बैठ गए हैं, जो कि नजायज़ असले के दौर पर, और उसके अलावा जो है ना इनका जोर चलता है, रक्षा वगैरह को ना मारते हैं। ऐसे में खवातीन को मोहल्ले में उतारने की बजाय रिक्शा ड्राइवर पर्ची टैक्स से बचने के लिए मेन फैसलाबाद रोड जुमरा चौक में उतार देते हैं। चौक में चुंगी वाक़या होने की वजह से खवातीन का गुजरना महाल हो चुका है। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से मुतालबा किया कि चुंगी को बाईपास पर मुंतकिल किया जाए। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट।
जंग में कोरोना इमरजेंसी के दौरान मरीजों की मुश्किलात के पेश नज़र सदर अंजुमन बहबूद मरीज़ा नवाज अकरम का बड़ा इकदाम। DHQ अस्पताल इंतजामिया को नई सिरिंजें अतिया कर दी गई। अंजुमन बहबूद मरीज़ा के सदर शेख नवाज अकरम ने DHQ अस्पताल झंग इंतजामिया को 50,000 सुरिंजें अतिया की। जनरल सेक्रेटरी जरीना शेख, शफीक अहमद और काशिफ अली ने सुरिंजें MS डॉक्टर इर्तिज़ाउल हसनैन को दी, जिस पर अंजुमन बहबूद मरीज़ा का शुक्रिया अदा किया गया। जी अस्पताल में आते हैं और इधर मेडिसिन नहीं मिलती, बाहर की लिख के दे देते हैं, ठीक है ना, उसका मुश्किल का सामना होता है गरीब लोगों को। अब नई सुरिंजें आई हैं और उनका यानी कि गरीबों को फायदा होगा। अंजुमन बहबूद मरीज़ा के सदर शेख नवाज अकरम की जानिब से कोरोना से मुतासर अफराद को मुफ्त अद्वियात देने का भी ऐलान किया गया है। 50,000 जो है आज हमें सुरंजें दी हैं और जो एमरजेंसी में यूज़ होंगी। उसके अलावा जो कोरोना के पेशेंट हैं उनके लिए हमारे सदर साहब ने ऐलान किया है कि वो फ्री उनको मेडिसिन वगैरह जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको भी दी जाएगी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सुरिंजें मिलने से बिलाशुबा मरीजों की मुश्किलात कम होंगी। अंजुमन बहबूद मरीज़ा की जानिब से मजीद अद्वियात देने की भी यकीन दहानी कराई गई है। दीगर मुखय्यर हजरात भी आगे बढ़ें तो मरीजों की मुश्किलात कम हो सकती हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। नए आने वाले बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज में आइसोलेशन रूम कायम। इंचार्ज ओल्ड एज होम मुनीबा कहती हैं कि कोरोना से बचाव के लिए तमाम मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ही बुजुर्गों को ओल्ड एज होम में रखते हैं। रिपोर्ट करेंगी शाहिदा घुमन। ओल्ड एज होम के इदारे ने अहम इकदाम लिया। आलमी वबा को देखते हुए नए आने वाले बुजुर्ग वालिदैन के लिए ओल्ड एज होम में आइसोलेशन रूम कायम कर दिए गए, जहां पर बुजुर्गों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जाती हैं। ओल्ड एज होम की इंचार्ज मुनीबा का कहना था, ओल्ड एज में जो भी बुजुर्ग मेल या फीमेल आते हैं इन्हें अलग रूम में रखा जाता है। कोरोना से बचाव के लिए तमाम तरह हिफाजती तदाबीर अख्तियार की जाती हैं और उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। कोरोना के हवाले से तमाम एकदम जरूरी इकदाम कर रहे हैं, जिसमें यह है कि जो भी नया हमारे पास एडमिशन आता है उसमें हम सबसे पहले उसके टेस्ट करवाते हैं और हमने एक सेपरेट रूम मुख्तस किया हुआ है जिसमें हम उनको अलहदा उनको रखते हैं और इसके अलावा सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह हम उनको प्रोवाइड करते हैं और फिर जब उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं तो फिर हम उसके बाद बाकी रेजिडेंट्स के साथ उनको रखते हैं। बूढ़े लोगों के लिए ओल्ड होम में मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। बुजुर्ग माशरे का कीमती एहसासा है, इसीलिए तो ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग वालिदैन के लिए भी तमाम तर कोरोना SOPs और मुकम्मल ट्रीटमेंट का ख्याल रखा जाता है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा घुमन, फैसलाबाद। फैसलाबाद से आपको बताएं, UC चेयरमैन राना अता मोहिउद्दीन के दफ्तर में राशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। रुकने सूबाई असम्बली मियां ताहिर जमीद राशन तकसीम किया गया। मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने के हवाले से UC 78 पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में तकरीब मुनाकिद हुई। इस मौके पर UC चेयरमैन राना अता मोहिउद्दीन का कहना था कि यूनियन काउंसिल के 100 मुस्तहिक अफराद की मदद की है। उनका कहना था कि रमजानुल मुबारक में मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखना चाहिए। उनके MPA मियां ताहिर जमील की अहम काविश है जिनके ताउन से ये मुमकिन हुआ। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में माह सयाम के हवाले से मोहब्बत कुरान मुहिम की तकरीब का इनेकाद किया गया। मर्द और खवातीन वकला में कुरान पाक तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे अज़ादार हुसैन। माह सयाम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में मोहब्बत कुरान मुहिम की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौका पर सदर बार चौधरी अख्तर अली विर्क, जनरल सेक्रेटरी खुरम एजाज कालू, नायब सदर रेहाना काशिफ समेत दीगर वकला भी शरीक हुए। इस दौरान सदर बार एसोसिएशन चौधरी अख्तर अली विर्क का कहना था कि अल मुस्तफा थिंकर्स वेलफेयर के शुक्रगुजार हैं, जिनकी जानिब से हर साल माह रमजान में कुरान पाक तकसीम किए जाते हैं। मैं अल मुस्तफा थिंकर्स फोरम की जानिब से मोहब्बत कुरान के सिलसिले में जो आज कुरान पाक इन्होंने तकसीम की है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और कुरान पाक सरचश्मा हिदायत है, इसमें दीन दुनिया के तमाम मामलात का हल इसमें मौजूद है। हमें और अल्लाह ताला हमें दुआ है अल्लाह ताला से कि हम इससे मुस्तफ़ीज़ भी हों और इसको पढ़ें भी। जनरल सेक्रेटरी खुरम एजाज कालू का कहना था कि कुरान पाक पढ़ना सवाब है और जिन वकला को कुरान पाक तकसीम किए गए उम्मीद है वो तलावत भी बाकायदगी से करेंगे। अल मुस्तफा थिंकर्स फोरम की जानिब से जी कुरान मजीद की डिस्ट्रीब्यूशन जो वो अमल में लाई गई है जी, और हर साल जो है इनका ये तरीक़ाकार है कि कुरान मजीद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक सदका जारी है जी। अल्लाह ताला हमें इस पे भी अमल करने की और साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल मुस्तफा थिंकर्स वेलफेयर की जानिब से माह सयाम में हर साल डिस्ट्रिक्ट बार में कुरान पाक तकसीम करने का इरादा किया गया। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। नाज़रीन, आपको बताएं कि फैसलाबाद में नून लीग यूथ विंग की जानिब से जामिया कासमिया के तलबा में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। मदरसे में पढ़ने वाले तलबा में कपड़े और तहाइफ तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे उमैर असमत।
मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद मलिक की जानिब से जामिया कासमिया में पढ़ने वाले तलबा में ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए कपड़े तकसीम किए गए। तकरीब में साबिक जनरल सेक्रेटरी नून लीग शाहिद मलिक, मरकजी उलमा कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा जाहिद महमूद कासमी, उलमा और तलबा शरीक हुए। इस मौका पर शाहिद मलिक का कहना था कि ईद उल फितर खुशियों का दूसरा नाम है और हमें इस मुबारक मौका पर तमाम मुस्तहिक अफराद को भी इन खुशियों में शरीक करना चाहिए। मेरे अल्लाह का हम पर बड़ा फजल है, अल्लाह ने हमें दिया है, तो हम कहते हैं कि जो हमारे मुस्तहिकीन तलबा हैं, गरीब लोग हैं, उनकी ईद की खुशियों में हम अपना हिस्सा डालें। ये अल्लाह ने हमें तौफीक दी हुई है, हम ये सिलसिला जारी और सारी रखते हैं। मरकजी उलमा कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा जाहिद महमूद कासमी ने कहा कि कोरोना वायरस के बायस मुआशरे के कमजोर अफराद मुआशी तौर पर बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ताजिर तबके और मुखैर हजरात को चाहिए कि ऐसे लोगों का खसूसी ख्याल रखें। गरीब, यतीम, बेवाएं और तलबा को ऐसे मौक़ों पर खसूसी तौर पर याद रखना चाहिए। इन्होंने जामिया के तलबा के अंदर जो कपड़े तकसीम किए हैं, ईद गिफ्ट तकसीम किए हैं, मैं ये समझता हूँ इन्होंने अल्लाह के अहकामात पर अमल किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया है। ईद की खुशियों में गरीबों को, यतीमों को, मसाकीन को, बेवगान को और अपाहज को और माजूरों को शामिल करना, ये हमारा दीन इसका हमें हुक्म भी देता है, जिस पर इन्होंने अमल करके आज अल्लाह को भी खुश कर दिया है और उसके रसूल को भी खुश किया है। उलमा कराम का कहना था कि खुशियाँ और मोहब्बत बांटना ही ईद उल फितर और दीन की असल रूह है। कैमरामैन इरफान अली के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। और इसके साथ ही 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप हमारी नशरियात फेसबुक पेज और यूट्यूब पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबर कोई भी हो, तफसील जानने के लिए आप सिटी 41 को विजिट कीजिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।